السلام علیکم، میں ہوں نبیلہ سندھو۔ اپنا پسندیدہ شو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بر وقت معلومات کے لیے بیل آئیکن پریس کریں۔ میں شو آف ہینڈز کے خلاف نہیں ہوں۔ اس کے پیچھے جو مقصود ہے وہ ٹرانسپیرنسی نہیں ہے۔ جب آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کمزور ہو گئے ہیں، آپ کی حکومت جاتی نظر آ رہی ہے، آپ کو اپنے ایم پی ایز اور ایم این ایز پہ اعتماد نہیں رہا، آپ نے ملک کا جو حال کر دیا، آپ کے ایم پی ایز اور ایم این ایز جو ہیں وہ حلقوں میں جانے کے قابل نہیں ہیں اور آپ کو ان پر اعتبار نہیں رہا، تو آپ کو آج شو آف ہینڈز یاد آ گیا؟ مریم نواز شو آف ہینڈ کی حامی، وزیر اعظم کے اعلان کی مخالف، کہا عمران خان نے کس حیثیت میں سینٹ الیکشن پہلے کرانے کا اعلان کیا، ذاتی مفادات کے لیے آپ آئین کا حلیہ نہیں بگاڑ سکتے، شو آف ہینڈ کے خلاف نہیں مگر اس وقت اس کے پیچھے شفافیت نہیں، انہیں اپنے اراکین اسمبلی پر اعتماد نہیں رہا، سینٹ کا الیکشن پہلے یا بعد میں کرا لیں، حکومت کو نہیں بچا سکتے، قومی اداروں سے کھیلنا خطرناک ہے جس کی قیمت ادا کرنا پڑے گی، یہ بھی کہا استعفوں کے بعد ضمنی الیکشن کا اعلان کیا تو ہم چوڑیاں پہن کر گھر نہیں بیٹھیں گے، ضمنی انتخابات کرانا خالہ جی کا گھر نہیں، یہ بھی کہا نواز شریف پیزا کیوں نہیں کھا سکتے، کوئی ایسا ڈاکٹر دکھا دیں جو کہے کہ دل کا مریض کبھی کبھار پیزا نہیں کھا سکتا۔ نون لیگ کے کئی ارکان راج کماری کی سیاست سے تنگ آ کر ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں، صوبائی معاون خصوصی اطلاعات فردوس عاشق اوان کا دعویٰ، کہا اپوزیشن کو سرپرائز دینے کا وعدہ پورا کریں گے، راج کماری صاحبہ بتانا پسند کریں گی کہ 2.5 سال تک اس نے خاموشی کا روزہ کیوں رکھا۔ لندن کے محلوں میں بیٹھے شاہی خاندان کے افراد پاکستان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، راج کماری نے جھوٹ کے ذریعے پاکستان کے عوام کو ورغلانے کی ناکام کوشش کی، اشتہاری، مفرور اور مطلوب عناصر منتخب حکومت کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، وزیر اعظم عمران خان سینٹ الیکشن میں چمک کی سیاست دفن کرنے جا رہے ہیں۔ جو ہے وہ بک جاتے ہیں، تاریخ میں ایسے کبھی نہیں ہوا کہ 64 ممبر یہاں پہ تھے، اگلے کمرے میں گئے تو وہ 50 ہی نکلے۔ اگر شو آف ہینڈ ہو جاتا ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ اس ملک میں یہ کہنا کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے یہ ختم ہو جاتا ہے، اس کا کریڈٹ عمران خان صاحب کو جاتا ہے۔ سپریم کورٹ نے شو آف ہینڈ کی اجازت دے دی تو بہت بڑا انقلاب ہوگا، وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں سینٹ الیکشن میں شفافیت ہوگی، سپریم کورٹ سے رجوع کیا جائے گا، دھاندلی ختم ہوئی تو اس کا صحرا عمران خان کے سر جائے گا، معاون خصوصی شہباز گل بولے کیبلری کوئن کی پریس کانفرنس ان کا خوف بتا رہی ہے، جنہوں نے دھاندلی سیکھی ہو شفافیت ان کے لیے ڈرانا خواب ہی ہو سکتی ہے، چھانگا مانگا ان کی سیاست کا اصل چہرہ ہے۔ ایم کیو ایم کا سینٹ الیکشن میں حکومت سے مکمل یکجہتی کا اظہار، وزیر اعظم کے سامنے اپنے تحفظات بھی رکھ دیے، متحدہ کے وفد کی عمران خان سے ملاقات، سندھ کی مجموعی سیاسی صورتحال اور کراچی پیکج سمیت دیگر مسائل پر بات چیت، وزیر اعظم سے گورنر سندھ عمران اسماعیل بھی ملے، کورونا کی صورتحال اور گرین لائن ریڈ لائن منصوبوں پر پیش رفت سے تفصیلی طور پر آگاہ کیا۔ انڈیا 15 سال سے پروپیگنڈا کر رہا تھا، جھوٹ پھیلا رہا تھا، مختلف فیک این جی اوز کا استعمال کرتا تھا، انڈیا بری طرح ایکسپوز ہو گیا، ایک ہفتہ گزر گیا پی ڈی ایم کی طرف سے، آپ نے اس کے اوپر کوئی احتجاج، کوئی بیان آپ کی نظروں سے گزرا، کم از کم میری نظروں سے تو نہیں گزرا۔ وفاقی وزیر مراد سعید کے اپوزیشن پر تابڑتوڑ لفظی حملے، کہا سابق حکمران بھارت کا ساتھ دے رہے تھے، پاکستان کے خلاف بھارتی پروپیگنڈا رپورٹ پر اپوزیشن کا ایک بیان نہیں آیا، یہ صرف حکومت یا وزیر اعظم کا فرض نہیں، سب کو بھارتی پروپیگنڈے کا جواب دینا ہوگا، ماضی میں بغیر ویزا بھارتی شہریوں کو مری بلایا گیا، بھارت میں حریت رہنما سے ملاقات نہ کر کے ان کو ٹھیس پہنچائی گئی، پی ڈی ایم جماعتی جلسے کی ناکامی کا الزام ایک دوسرے پر ڈال رہی ہیں، دھاندلی پر شور مچانے والے شو آف ہینڈ پر اعتراض کر رہے ہیں، یہ بھی بولے کہ یہودی اور انڈین لابی مسلسل پاکستان کے خلاف کام کر رہی ہے، عمران خان نے نئے دور کے ہٹلر مودی کو بے نقاب کیا۔
नैब सियासतदानों को रुस्वा करने का इदारा बन चुका, सरबराह पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान की तनकीद। कहा नैब के केसेस का कोई एतबार नहीं, आम आदमी को आज कुछ नहीं मिल रहा, इसका मुजरिम कौन है? अवाम को इल्म होना चाहिए चीनी स्कैंडल में किसको फायदा हुआ। कोरोना हर गुजरते दिन के साथ मजीद मोहलक, एक दिन में मजीद 71 अमवात, 2545 नए केसेस। कराची के जिला वस्ती और गरबी के बाद किमाड़ी में भी माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज, मुतलका इलाकों में डबल सवारी, तकरीबात, तिजारती सरगर्मियों और गैर मुतलका अफराद के दाखिले पर पाबंदी। लॉकडाउन 31 दिसंबर तक नाफिज रहेगा। किराना, बुनियादी ज़रूरियात और मेडिकल स्टोर्स मखसूस औकात में खुले रहेंगे। पेशावर के मजीद 7 इलाकों में भी स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। इस्लामाबाद के निजी तालीमी इदारों को हफ्ते में एक दिन बच्चों को बुलाकर काम देने की इजाज़त। ऑनलाइन एजुकेशन इख्तियार न करने वाले निजी तालीमी इदारों को इजाज़त दी गई। तलबा को स्कूल्स बुलाते हुए SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। सर्दियों की छुट्टियों में कोई स्कूल तलबा को नहीं बुला सकता। तमाम मुआशी आशारिये मस्बत समत में जा रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की कौमी राब्ता कमेटी बराए SMEs के इजलास में गुफ्तगू। कहा छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार मईशत का अहम जुज़्व हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी राब्ता कमेटी बराए हाउसिंग और तामीरात का भी इजलास। इमरान खान बोले पहली बार गरीब आदमी को अपना घर बनाने के लिए कर्जे फराहम कर रहे हैं। डिजिटल गवर्नेंस से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती प्रोग्राम के वफ्द की भी इमरान खान से मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिश्चियन टर्नर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी के अमूर और मजमूई इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बरतानवी हाई कमिश्नर ने अफगान अमन अमल और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम को बरकरार रखने में पाक फौज के किरदार को सराहा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी UAE के 2 रोज़ा दौरे पर दुबई पहुंच गए। आला हुकाम से मुलाकातें होंगी। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं बैरून मुल्क मकीम पाकिस्तानियों की फलाह बहबूद हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। पाकिस्तान नेवी के नए जहाज PNS तबूक की कराची आमद, बहरी बेड़े में बाकायदा शमूलियत। तर्जुमान पाक बैरिया के मुताबिक नेवल चीफ तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। PNS तबूक की तामीर रोमानिया में की गई। PNS तबूक जदीद जंगी जहाज है जो स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन और डिफेंस सिस्टम से लेस है। कुल्फी जमा देने वाली सर्दी, यखबस्ता हवाओं की हुक्मरानी, मुल्क भर में ठंड ही ठंड, वादियां बर्फ में गुम। मैदानी इलाकों में धुंध का राज। सुबह और रात के औकात में मोटरवेज और नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। सवात के इलाके बहरीन में बर्फानी तोदा गिर गया, 10 मकानात दब गए। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सर्दी आते ही शिमाली इलाके सफेदी में छुप जाते हैं। बर्फबारी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी रहता है। बर्फबारी होती किस तरह है? पानी किस दर्जा हरारत पर बर्फ बनता है? ठंडी हवा भारी कैसे होती है? पानी की बूंदें किस तरह हवा में जमती हैं? सब सवालात के जवाबात इसी बुलेटिन में। खसूसी रिपोर्ट इसी खबरनामे का हिस्सा। कावन के बाद इस्लामाबाद चिड़ियाघर के भूरे रीछ भी आज़ाद माहौल में जिंदगी बसर करेंगे। बबलू और सूसी निजी एयरलाइंस की परवाज से कतर भिजवा दिए गए। जानवरों के हकूक़ की आलमी तंजीम फॉरपॉज की टीम भी रीछों के हमरा रवाना हुई। दुनिया की नजरें कोरोना वैक्सीन पर लग गईं। सऊदी अरब में भी दवा का इस्तेमाल शुरू। जर्मनी में 27 दिसंबर से वैक्सीन लगाने का अमल शुरू होगा। फ्रांसीसी सदर का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया। अमेरिका में एक दिन में 3600 से ज्यादा हलाकतें।
सेहत दुश्मन अनासर लोगों की जिंदगियों से खेलने लगे। कोरोना वैक्सीन के आते ही झूठी और जाली अफवाहों का बाजार भी सरगर्म। एक से बढ़कर एक झूठी कहानी सोशल मीडिया पर शेयर होने लगी। साइंसदानों ने अफवाहों को झूठ का पलंदा करार दे दिया। साइंसदानों के मुताबिक वैक्सीन से डीएनए मुतासिर होगा, ना ही जिस्म में कोई चिप दाखिल होगी। ट्विटर इंतजामिया का भी वैक्सीन पर गुमराहकुन ट्वीट्स हटाने का फैसला। बुलेटिन का आगाज आम खबर से करेंगे। सेनेट इलेक्शन पर ऑर्डिनेंस किसी सूरत नहीं लाने देंगे। इमरान खान को अगर पीडीएम से खौफ नहीं तो फिर कबल अज वक्त सेनेट इलेक्शन का ऐलान क्यों किया? मरियम नवाज कहती हैं कि सेनेट इलेक्शन पर ऑर्डिनेंस किसी सूरत नहीं लाने देंगे। इमरान खान को अगर पीडीएम से खौफ नहीं तो कबल अज वक्त सेनेट इलेक्शन का ऐलान क्यों किया? मरियम नवाज ने मजीद कहा कि जाती मफादात के लिए आप आइन का हुलिया नहीं बिगाड़ सकते। शो ऑफ हैंड के खिलाफ नहीं, मगर इस वक्त इसके पीछे शफाफियत नहीं है। मरियम नवाज शो ऑफ हैंड की हामी, वजीर आजम के ऐलान की मुखालिफ। कहा इमरान खान के ऐलान के पीछे शफाफियत नहीं है। आपने किस हैसियत में ये जो एक महीना पहले का ऐलान है इलेक्शन होल्ड करने का सेनेट का, वो आपने किस हैसियत में किया? ये सारी अनाउंसमेंट्स जो हैं ये ईसीपी को करनी है। आप सुप्रीम कोर्ट को किस खुशी में कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं और क्यों आप उसको इस मुकदमे में घसीट रहे हैं? चेयरमैन सेनेट का जो इलेक्शन हुआ था या जो उसको हमने चैलेंज किया था, उसके खिलाफ अदम एतमाद की जब तहरीक आई थी, तब आपको शो ऑफ हैंड्स याद नहीं आया। लेकिन अपने जाती मफाद के लिए आप आइन का हुलिया ना बिगाड़ सकते हैं, ना आपको हम इसकी इजाजत देंगे। मरियम नवाज का कहना था सेनेट का इलेक्शन पहले या बाद में करा लें, हुकूमत को नहीं बचा सकते। 500 सीट्स के ऊपर इलेक्शन नहीं करा सकते बाई इलेक्शन। कह रहे हैं हम इलेक्शन करा देंगे, तो ये कोई खाला जी का घर नहीं है। आप इलेक्शन अनाउंस करेंगे तो क्या हम चूड़ियां पहन के घरों में बैठे रहेंगे? अगर नवाज शरीफ साहब का ये फैसला होगा, पीडीएम का ये फैसला होगा कि हमने इस्तीफे देने हैं, कब देने हैं, शहबाज शरीफ साहब न सिर्फ उसके साथ हैं बल्कि वो उसको सपोर्ट भी करेंगे। मरियम नवाज ने मीनार पाकिस्तान का जलसा कामयाब बनाने पर लाहौर के अरकान असम्बली और मुंतजमीन के एजाज में जोराना भी दिया। असगर सलीमी, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। ऑपोजिशन को सरप्राइज देने का वादा पूरा करेंगे। नून लीग के कई अरकान राजकुमारी की सियासत से तंग आकर हमारे साथ राब्ते में हैं। मोमिन से इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिकवान ने यह दावा किया और उन्होंने कहा कि ऑपोजिशन को सरप्राइज देने का वादा पूरा करेंगे। नून लीग के कई अरकान राजकुमारी की सियासत से तंग आकर हमारे साथ राब्ते में हैं। शाही महल में बैठ के एक दफा फिर राजकुमारी साहबा ने झूठ के अंबार लगाए, आवाम को गुमराह करने की कोशिश की। मैं उसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करती हूँ। अभी तो इमरान खान ने उस इलेक्शन को साफ शफाफ बनाने के लिए शो ऑफ हैंड का जिक्र किया तो आप बिलबिला उठी हैं। आपकी तड़प इस बात को जाहिर कर रही है कि जिस छांगा मांगा की सियासत का आगाज आपके जिले सुबहानी ने किया था, वो छांगा मांगा की सियासत इमरान खान शो ऑफ हैंड के जरिए दफन करने जा रहा है। आप अपना घर संभालें, आप अपने उन मेंबरान की फिक्र करें जो शाही खानदान के मुतासरीन हैं और जो आपसे छुटकारा हासिल करने के लिए हमारे साथ रवाबत में है। सुप्रीम कोर्ट ने शो ऑफ हैंड की इजाजत दे दी तो बहुत बड़ा इनकलाब होगा। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं सेनेट इलेक्शन में शफाफियत होगी। सुप्रीम कोर्ट ने शो ऑफ हैंड की इजाजत दे दी तो बहुत बड़ा इनकलाब होगा। वफाकी वजीर दाखिला की गुफ्तगू, सेनेट इलेक्शन में शफाफियत होगी, सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाएगा। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने शो ऑफ हैंड का फैसला दिया तो तारीखी होगा। शो ऑफ हैंड हो जाता है तो फिर मेरा ख्याल है कि इस मुल्क में ये कहना कि इलेक्शन में धांधली हुई है, ये खत्म हो जाता है। इसका क्रेडिट इमरान खान साहब को जाता है।
वजीर दाखिला की जिम्मेदारियां संभालने के बाद शेख रशीद की पहली बार पुलिस लाइन इस्लामाबाद आमद, यादगार शोदा पर फूल चढ़ाए और फातिह खानी की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद ने नई टेक्नोलॉजी लाने का ऐलान किया। तमाम चेक पोस्टों को खत्म कर रहा हूँ इस्लामाबाद। 3 रेड जोन की चेक पोस्ट हैं, वो भी जो ये गाड़ियां आप देख रहे हैं, ये गाड़ियां किसी जगह किसी गाड़ी को रोक के चेक कर सकती हैं। वफाकी वजीर दाखिला का कहना था कि शनाख्ती कार्ड और पाकिस्तानी पासपोर्ट की तौहीन नहीं होनी चाहिए। साकिब वर्क, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि हुकूमत घबराहट का शिकार है, इसलिए सेनेट इलेक्शन जल्दी करवाना चाहती है। सदारती ऑर्डिनेंस भी आइन तब्दील नहीं कर सकता। नैब केसेस झूठे हैं। तफसीलात बता रहे हैं नासिर भट्ट। कराची में मौलाना जरवली के बेटे से ताज़ियत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, सदारती ऑर्डिनेंस से भी इस आइन को तब्दील नहीं किया जा सकता। हम तो इलेक्शन कमीशन से ये मुतालबा करेंगे कि वो हुकूमत का मुआखजा करे, इस पर उसका नोटिस ले। किसने हुकूमत को और कभी ना कोई इजाज़त दी है? आइन बड़ा वाज़ेह है इस हवाले से कि इंतखाबात का पूरा निज़ाम इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात से वाबस्ता है। सरबराह पीडीएम ने मजीद कहा, नैब केसेस झूठे हैं। पूरे मुल्क में अवाम की नफरत बढ़ रही है और बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। नेब हमारे खिलाफ दावा नहीं कर सकता। हम नेब के खिलाफ मुद्दई हैं कि तुम एक फरीक और जानबदार इदारा हो, तुम सियासतदानों की रसवाई का ठेका लिए हुए हो। कराची आमद के मौके पर मौलाना अब्दुल गफ्फूर हैदरी, मौलाना राशिद सुमरो समेत दीगर रहनुमाओं ने मौलाना फजलुर रहमान का इस्तकबाल किया। नासिर भट्ट, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। आगे बढ़ते हैं, अहम खबर आपको दें। वफाकी वजीर मुराद सईद कहते हैं कि साबिक हुक्मरान भारत का साथ दे रहे थे। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय प्रोपेगेंडा रिपोर्ट पर ऑपोजिशन का एक बयान नहीं आया। ये सिर्फ हुकूमत या वजीर आजम का फर्ज नहीं, सबको भारतीय प्रोपेगेंडा का जवाब देना होगा, ये कहा मुराद सईद ने। इंडिया 15 साल से प्रोपेगेंडा कर रहा था, झूठ फैला रहा था, मुख्तलिफ फेक एनजीओज का इस्तेमाल करता था। इंडिया बुरी तरह एक्सपोज हो गया। एक हफ्ता गुजर गया, पीडीएम की तरफ से आपने इसके ऊपर कोई एहतिजाज, कोई बयान आपकी नजरों से गुजरा? कम से कम मेरी नजरों से तो नहीं गुजरा। वफाकी वजीर मवासलात मुराद सईद ने अपोजिशन पर इल्जामात की बौछार कर दी। पाकिस्तान के अंदर अपोजिशन की जमातों ने भी फेटअप की रजिस्ट्रेशन के वक्त एनआरओ मांगा, नहीं मिला, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उसके लिए वोट ही नहीं किया। तो कौन मुखालिफत कर रहा था? इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ लॉबिंग कर रहा था और यहाँ पे इन्होंने साथ दिया। मुराद सईद ने कहा कि सिर्फ हुकूमत या वजीर आजम का फर्ज नहीं, सबको भारतीय प्रोपेगेंडे का जवाब देना होगा। आप इंडिया जाए और वहाँ पे आप हुर्रियत रहनुमाओं की बजाय आप मुख्तलिफ इंडियन बिजनेसमैनों से मुलाकात करें। आप पाकिस्तान के अंदर उनको बगैर वीज़ा के मरी बुलाए। सज्जन जंदाल को आप कहे कि हमारे ज़ाती ताल्लुकात है। मोदी को आप नवासी की शादियों पे बुलाए। होता क्या है? पाकिस्तान के कश्मीर कास के ऊपर आपका नुकसान हो जाता है। वफाकी वजीर कहते हैं कि पीडीएम जमाते जलसे की नाकामी का इल्जाम एक अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नबीला सिंधु। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें।